Welcome back for the another match between Morjan Warriors. Will take on Ganpati Warriors. Morjan Warriors won the toss and they have elected to bat field first. And Gaja, extra men of both the teams, please join us. May I request the extra men of both the teams to please join us on the stage. So Gaja on the bowling mark from the committee box end will be bowling to Praveen Papa on the striking position. Oh, beautiful delivery, and Gaja has got that record of giving just one run in the very first match in the power play over. Such a great bowler. Anand Patil on the non-strikers end to pair for Ganpati Warriors. Gaja once again on the bowling mark. Oh, lovely shot, beautifully picked up in the reverse shot, and the connection was excellent. Absolutely. The second delivery was dispatch in style, and that to a reverse shot from Papa. What a timing this is. What a good eye hand coordination. Absolutely. The result was a pleasure to watch. The ball sailing many miles outside the park, outside the ground for a big six. So slightly disappointed and dejected. This will be a good over between Gaja and Praveen. Gaja is a good bowler and Praveen is a good batter. What a good collision between these two, face to face. Oh, once again, beautiful this time. Oh boy, in the point region, he played straight to the fielder. He almost held it. The ball hit even the abs, but just popped out. Tough luck here for Gaja. They would have been out for sure. And that wasn't a difficult catch at all, but the fielder wasn't ready maybe. He's trying the reverse and connection is so good this time. Played straight down. That's gone. A beautiful boundary. Hit it straight down to the long off reach. So Praveen is trying to hit every ball what he can get. And he's been practicing, I guess, reverse shot, the switch hit of Kevin Peterson, who invented the shot, and been nicely played by Praveen. Gaja is trying his best, what he can bowl the best. He's bowling to Praveen to stop the runs. Oh, look at that. The ball hit the bottom of bat. And just one runs. And if you say it in the Ashok Naik's language, it's ulti-pulti shot. Yes, he's remembering Shekhar Pillai. Ulti-pulti. Anand Patil on the striking position. Ganpati Warriors are taking on Morjan Warriors. Both the team has got that name Warriors, so it is not going to be a simple match. It is going to be a war. A lovely shot, beautifully picked up, straight up and over, right out from the middle of the bat, gone the distance, straight down the ground in between long off and long on. A huge, massive sixer to mark the end of the very first over. Score is 17. Well, very expensive over. This is from Gaja. He's not happy at all. And Water in the power play over, he's known to give just one run, what he had given to the team. Shan Strikers, whom Morjan Warriors defeated in the very first match. And the second match was won by Shri Budgeshwar, outplaying Siddheshwar Mallikarjun. But what a inning played by Munna. One man army, stand tall and played a remarkable inning of 62 to 63 runs. Just one ball and 1 6 shot of out of 3 deliveries, 18 runs needed, and Munna hit 2 huge sixes. Very close match that was with Shri Budgeshwar, but finally Shri Budgeshwar winning. And now the winner of this match will play
Oh, lovely shot once again. The ball is up and is going. There is a fielder beneath. Yes, enough bat on that. Plentiful of bat on that. The very first ball and surprise Raju Dabulkar. What it looked like could be a catch. The ball had enough firepower to carry it outside the mark boundary for six. Morjai Warriors won the toss and fielding. Change of bat to Praveen. And I remember Praveen, he is a policeman, and their team got victory at Vasco Police Premier League at Budibhat ground. And Praveen played a major role in that. He took the team to victory in that particular tournament. Low full toss once again, a good hit. The ball is speeding away. Will go all the way for a boundary. He is speeding up and finding the gaps so good. Praveen, most of the time he's sometimes trying the reverse shot, sometimes trying the straighter shots in between long off and long on. Oh, take that once again, beautifully struck. He's dealing with boundaries and sixes, nothing less than that. That is the style and that is the way of batting by Praveen. Every ball he's just trying to hit hard. No singles and twos. No dot balls. Neither wide balls as well. Raju Dabulkar. Oh, beautifully weighted and then bang. This time in the mid-wicket region. Nothing much the fielders can do about that. They can just watch the ball sailing and going out of the ground easily. 39 runs with the help of this sixer. A lower full toss, a mistake here from Raju. And this time long leg region. He's dealing in sixes. Praveen. But it was 39, and now with the help of this six, the score moves up to 45 runs. And this is just the second over which is in progress, and score is whooping now 45. Oh, this time is the opportunity. Oh, misjudgment there. He speeded up quite a bit. This has to be taken. Opportunity was there for to make Praveen out, but the opportunity going begging. In the last delivery of the second over and scored 47 after the completion of 2 overs. Without a loss, no success, but there was an opportunity in the last delivery of the second over. The ball was gone quite heighted, at least 35 to 40 meters away up in the air. Anand Patil gains the strike Prajay to start the third over after the completion of Raju Dabulkar's over. After completion of 2 overs, score is 47. Most of the runs coming from the bat of Praveen. He's playing on 41, his individual score. Praveen just 9 runs away, what could be his 50 in the very first match. But 250 for Viraj and 150 from Mukhtar Qadri in this tournament. Beauty from Anand Patil. Hitting hard and hitting the ball out of the park. That is the style and way of batting to take the score, sailing quickly. The graph is shooting up, score is 53. Nothing less than a 6 is what they want. Put as many runs as much possible. Oh, once again catching up in the point position taken this time. He's the same fielder who just put it down. The reverse shot of Praveen. So Praveen is surviving here with the 2 drop catches, and he's playing his individual score on 41 runs.
So let me inform the spectators, viewers watching this match live on the YouTube. Tenniscricket.in bringing you live YouTube coverage of this beautiful match has been played on Shantadurga ground at Dongri. And the first half century was scored by Mukhtar Qadri in the very first match. And then in reply, Viraj of Kudneshwar Cricketers scored half century. Not only half century, he took the team to the target of 85 and won the match. And in the second match as well, Viraj played a marvelous inning and a 50 plus runs. And then Praveen is now very close to what could be his 50. The ball is up and falling safe. Excellent piece of work there, but fumbled in the point region. Morjain Warriors and Ganpati Warriors are clashing in between. In what could be this is the third match in the afternoon session, Group B matches. Oh, this is good left-hand, right-hand combination. Will definitely help as an advantage for the batting side, because every rotation there has to be a change in the field. Look at that. Gajai is slightly moving away in the long on region. Quick delivery, well bowled by Prajay. Aziz. Beautiful delivery from Prajay. Babu. Batsman name, non-striker. Sarfaraz there on the non-strike end. On strike is Praveen once again. Oh, he did hard, absolutely whistling away. Dispatch it out of the park. Once again a massive sixer coming from the bat of Praveen to mark the end of the 3 overs. 61 for the loss of 1 wicket. Anand Patil to depart. And on one done position, it's Sarfaraz who stepped in. Sarfaraz Sheikh. And still a lot of depth in the batting to come. Govind Prabhu, who's the MS Dhoni of Ganpati Warriors. Bappa. Pradeep Navelkar, wonderful player. Sangam Gaskar, Aniruddha. Palekar, Abhishek Gaonkar, Niranjan Sawant. Oh, nicely done, beautifully picked up, and what a timing this is from Sarfaraz Sheikh. Absolutely eye-catching. Not easy to hit that kind of a shot, and quick dispatch there in the square leg region for the left-hander. What a good coordination, absolutely bang on target. He's picking his spot so quickly. This time way outside the off stump. This time having a good look at that. Mohsin Sheikh, official umpire in the baller's end. In the square leg is Babu Dabholkar. And the umpire's team leader is Vaman Mayekar. Oh, once again a good hit. This is what is the batting style of Ganpati Warriors. How many more sixes that they will show to the spectators. Every alternate ball, every ball has been dispatched to six, and Praveen has been doing right from the beginning, and now Sarfaraz Sheikh has joined the feast as well. 73 is the score with the help of this six from Sarfaraz Sheikh's bat. Oh, nicely done once again. Look at that beauty. Look at the distance. Let me share some information. Who's the longest distance sixer hitter? International record is of Shahid Afridi against England. He hit 158 meters out of the stadium. Is the longest distance ever recorded for a massive sixer.
Oh, nicely hitting the mid wicket region there. The ball once again in between deep square leg and long on. In the cow's corner, the ball has raced away to the boundary. Now this left-hander is doing the job in joining the feast, as I mentioned after Praveen. Anand Patil to depart just one wicket down, and the score is already crossed 83. And once again, look at this flick shot. 3 times he has attempted this shot, and 3 times he's so successful in sending 2 sixes and 1 boundary to take the score to 87 runs after the completion of 4 overs for the loss of 1 wicket. Batting first is Ganpati Warriors. They are at war against मोरजे वॉरियर्स. तो अशोक जी, बिल्कुल एक कांटे की टक्कर होने की संभावना यहाँ पर आप देख सकते हैं. जिस प्रकार से यह शॉट लगे हैं, और ख़ास तौर पर प्रवीण और सरफराज शेख अब जो कि जुड़ चुके हैं बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, सिक्सर पर सिक्सर बटोरते हुए एक लंबा स्कोर खड़ा करने का प्रयास. यहाँ पर 99 अब तक का हाईएस्ट स्कोर गिना जा चुका है इस मैदान पर. तो देखना होगा कि क्या गणपति वॉरियर्स अपने अच्छे बल्लेबाजों की बदौलत 100 रन पार कर जाएगी. 87 रन फिलहाल आखिरी ओवर. मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर वो सुंदर गेंद के साथ पहली गेंद पर डॉट गेंद कराया. हालांकि आखिरी ओवर अभी भी बची 5 गेंदें, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 87 रन. तो अशोक जी, बिल्कुल दो बड़ी टीमों के बीच ये भिड़ंत. इस बार पकड़ लिए, 6 रन के लिए भेज दिया. 93 रन इस 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है. अभी भी 4 गेंदें यानी शेष. तो मुझे लग रहा है अशोक जी, ये जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, निश्चित तौर पर 3 फिगर मार्क यानी कि 100 रन के पार चले जाएगी. स्कोर 99 रन बनाया था श्री बोडगेश्वर ने, मगर गणपति वॉरियर्स लगता है जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रही है 110 या फिर 111 के आसपास रहेगा लक्ष्य. इसी बीच गेंद आ चुकी है. अभी भी 4 गेंदें शेष. रिवर्स का प्रयोग, चूंकि हालांकि 1 रन मिलेगा. स्कोर 94. काफी निराश, हताश. रिवर्स शॉट में माहिर सनम सालगांवकर भी देख रहे हैं. हालांकि सनम सालगांवकर बादशाह हैं रिवर्स सिक्सर के. गोवा के सरजमीन पर एक बेहतरीन रिवर्स का स्ट्रोक खेलने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी सनम सालगांवकर. तो फिलहाल 3 गेंदें, स्कोर 94. और यहाँ पर देखना होगा इशारा, मिस फील्डिंग और गेंद गई 4 रन के लिए. बाई का इशारा. इस 4 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 98 रनों पर, 98. तो अशोक जी, 2 गेंदों में 2 रन भी अगर आते हैं तो फिर भी 100 रन बना लेंगी टीम गणपति वॉरियर्स. बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि आज का हाईएस्ट टोटल ये रहेगा, या फिर मेक नो मिस्टेक. अच्छा शॉट. 4 रनों के लिए 102 रन, यानी कि 100 रन पार कर चुकी है टीम. केवल अभी भी 5वीं ओवर जारी, यानी कि आखिरी गेंद अनिशेष. 102 और तो लगभग 110 के आसपास निश्चित तौर पर रहेगा. भले का अंदरूनी हिस्सा लगा, अच्छी फील्डिंग. वहां पर केवल 1 रन पे रोका. स्कोर पहुंचा 103. 104 रन जीतने के लिए. तो निश्चित तौर पर 100 का आंकड़ा पार करती हुई टीम गुप्तेश्वर, माफी चाहूंगा, गणपति वॉरियर्स 104 रन का लक्ष्य रखा है मोरजे वॉरियर्स के सामने. तो देखना होगा कि किस प्रकार से मोरजे वॉरियर का रवैया रहता है, किस प्रकार की बल्लेबाजी रहती है. बिल्कुल पहली गेंद से तोड़ फोड़ की बल्लेबाजी करनी होगी. पहली गेंद से लंबा सिक्सर, 4 रन की तलाश में बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने की कोशिश करनी होगी. तो चलिए चलते हैं दूसरे इनिंग की ओर. इसी बीच अंपायर ने कहा इट्स ओवर एंड टाइम चेंज इन द कमेंट्री एज वेल. ओवर टू माय फ्रेंड एंड कलीग अशोक जी नाइक इन हिंदी. ओवर.
तो इसी बीच मैं गुजारिश करूंगा कि श्री बडगेश्वर कप्तान महेश साकलकर और बरमूडा पॉइंट के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। अल्विनो, requesting you to please come for toss, Bermuda Point captain, and also requesting my friend Shri Bodgeshwar captain Mahesh Sakalkar, please do come for the toss. नदीम 104 का टोटल, बड़े टोटल का मुकाबला। आज के दिन के अगर पहले दिन की बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट टोटल, एक बड़े इनिंग प्रवीण नाइक उर्फ पापा की और ओपनिंग जोड़ी। पहली गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर निकले, एक बैठक शॉट लगाना चाहते थे लेकिन गेंद के लाइन से थोड़ा सा दूर थे राजेंद्र दाभोलकर स्ट्राइक एंड पर। मुरजाई वॉरियर्स क्रिकेट टीम की ओर से ओपनिंग जोड़ी में बॉलिंग कर रहे हैं प्रदीप और नॉन स्ट्राइकर एंड पर उनका साथ दे रहे हैं रोहित बल्लेबाज। फुल टॉस इस बार लेफ्ट का गेंद को हवा में, शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते, सिंगल। एक रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मोरजाई वॉरियर्स क्रिकेट टीम को पावर प्ले का पहला ओवर 104 का टोटल है। पहले से ही आघात करना पड़ेगा मैदान पर, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए। फिलहाल रोहित स्ट्राइक पर प्रदीप की गेंदबाजी का सामना करते हुए विकेट कीपर गोविंद उर्फ बाप्पा। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद चली गई ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट पर फिर से सिंगल। एक रन और जुड़ गया स्कोर में, एक रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा, 2 पर पहुंचा। लंबा सफर, एक बड़े टोटल का मुकाबला मैदान पर, लेकिन जिस तरह से पिछला मैच रहा था 99 के टोटल का, एक शॉट से दूर हो गई सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन क्रिकेट टीम मुन्ना की शानदार बल्लेबाजी से। ओवर पिच गेंद, सही संपर्क नहीं रहा, बाहरी किनारा, अधूरी हिस्सा लगा बल्ले का और तब जब तक शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड करते, सिंगल फिर से स्कोर के खाते में। ओवर पिच गेंद थी राजेंद्र दाभोलकर के लिए लेकिन सही बल्ले पर गेंद नहीं लगी थी, अधूरी हिस्सा लगा और शॉर्ट फाइन लेग पर सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 पर पहुंचता हुआ। आने वाला मैच जो बरमुडा पॉइंट और श्री बोडगेश्वर, इन दो टीमों के बीच में, प्लीज आइए दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें जो इस मैच के बाद तुरंत मैच होगा।
इस बार करारा शॉट, ओवर पिच गेंद रोहित के बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। शॉट रोहित के बल्ले से, फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन मैदान पर दिखाई दे रहा है। डीप मिड विकेट और एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, लॉन्ग अप और लॉन्ग ऑन लगभग मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर। सामने बल्लेबाज रोहित, नॉन स्ट्राइकर एंड पर राजेंद्र दाभोलकर और विकेट कीपर अब मात्र गोविंद प्रभु, जो स्टंप को बिल्कुल चिपके हुए उसी के साथ हेलमेट परिधान करते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स के ओर से ऑफसाइड पर एक कवर पॉइंट पर, एक एक्स्ट्रा कवर पर 2 फील्डर सर्कल में, एक मिड ऑन पर फील्डर, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक शॉर्ट थर्ड मैन। लेग स्टंप से बाहर जाने दिया गेंद को, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का मोहसिन के साथ, मोहसिन शेख और शिवशरण उर्फ बाबू दाभोलकर, 2 अंपायर मैदान पर। इस बार खेला ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग पर फील्डर हाना हाना कर रहे थे और इसी के साथ एक के तो जाना पड़ेगा वापस। फिलहाल पहला विकेट मोरजाई वॉरियर्स को लगता हुआ पहला धक्का, हल्के से खेला था स्क्वायर लेग पर, बढ़िया फील्डिंग थी, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर से टकराते हुए स्टंप पे लगे और तब तक क्रीज से काफी आगे निकले थे राजेंद्र दाभोलकर। तो पहला धक्का मोरजाई वॉरियर्स क्रिकेट टीम को, और हम कॉल कर रहे हैं, आइए प्लीज बरमुडा पॉइंट क्रिकेट टीम जल्द से जल्द आपकी टीम लिस्ट और टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। बॉलिंग में परिवर्तन, आनंद पाटिल दिखाई दे रहे हैं, खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने रोहित, और रोहित का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज 1 डाउन बैट्समैन मैदान पर। साई मैदान पर अपटम से बाहर छोड़ा, बल्ले को हटाया, गेंद के लाइन से वाइड बॉल का इशारा, अंपायर का 1 रन और जुड़ गया। 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा, 11 पर पहुंचा, 1 विकेट पर। और आइए जल्द से जल्द बरमुडा कैप्टन टॉस के लिए आइए जल्द से जल्द। ओवर पिच लॉफ्ट किया गेंद को, डीप लॉन्ग ऑन सीमारेखा से बाहर, गेंद 6 रन के लिए। रोहित को एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी, जिस तरह से पिछले मैच में मुन्ना ने एक बड़ी इनिंग पेश की, शायद एक शॉट के साथ दूर हो गया मुकाबला, लेकिन जो बल्लेबाजी की, जीतने वाले के साथ हारने वाले की भी चर्चा रही। बहुत ही बेहतरीन शॉट, आनंद पाटिल एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स के ओर से, राइट आर्म ओवर द विकेट, छोटी गेंद हुक किया, इस बार डीप लॉन्ग लेग सीमारेखा पर, कोशिश बढ़िया की थी लॉन्ग लेग बाउंड्री पर फील्डर ले, लेकिन कोशिश नाकामयाब रही, गेंद हाथों से लगी लेकिन गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर। बैक टू बैक रोहित के बल्ले से दूसरा बड़ा आगाज, गेंद सीमारेखा से बाहर, 6 रन के लिए। सफर लंबा है, मंजिल दूर की है, 104 का टारगेट है मैच को जीतने के लिए, तो यही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ओवर पेच सामने उड़ाया, इस बार कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गेंद, एक नजाकत भरा छक्का, 6 रन के लिए।
और इस बार फिर से और पेस गेंद थी, सफल नहीं रहे। अपने आप पर थोड़े से रोहित नाखुश भी हो गए, मालूम था ये मौका था बड़े शॉट का, लेकिन भीतरी किनारा लगा, गेंद निकली मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर के सामने। गेंद जब तक आते उठाते फील्डर फील्ड करते, एक रन और जुड़ गया स्कोर के खाते में। अनंत पाटिल थोड़े से महंगे साबित हो रहे इस ओवर में, और सामने नए बल्लेबाज सही उनकी गेंदबाजी का सामना करते हैं। खेल जारी दूसरे ओवर का। ओह, बहुत बेहतरीन शॉट, ओवर पेस गेंद, स्लॉट में गेंद, बिल्कुल आला शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन पर सीमारेखा से बाहर गेंद। 6 रन के लिए, और इन 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 36 लॉस ऑफ 1 विकेट, 36 रन 1 विकेट पर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी है। श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है, फील्डिंग कर रही है मैदान पर। बाईस का इशारा अंपायर का शिवशरण उर्फ बाबू दाभोलकर। 1 रन और बढ़ता हुआ स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा, टोटल हो चुका है 37, और खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 2 ओवर का। 18 के साथ रन रेट जो कि मोरजाई वॉरियर, अगर रनों की बात की जाए तो सही चल रही है मोरजाई। एक मात्र विकेट राजेंद्र दाभोलकर का, लेकिन सामने जिस तरह से रोहित बल्लेबाजी कर रहे हैं, शायद पिछले मैच में यही काम किया था मुन्ना ने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज में, वही बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी में और एक परिवर्तन। तीसरा ओवर जारी गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम की ओर से। बॉलिंग में परिवर्तन, अनंत उर्फ पिंटो गेंदबाजी के मोर्चे पर, साई उनके सामने। 2 ओवर का खेल समाप्त। तीसरे ओवर के शुरुआत, 104 का टारगेट, लेकिन बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही है मोरजाई वॉरियर्स क्रिकेट टीम बल्लेबाजी में। और बहुत ही बेहतरीन शॉट, इस बार एक यॉर्कर लेन के गेंद, लेकिन बहुत ही अच्छा खेला, बल्ले के बीचों बीच सामने उड़ाया, बॉलर के ऊपर से 6 रन के लिए। उड़ाया मिड विकेट पर, इस बार बहुत एक करारा शॉट, ताकत भरा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, बेमिसाल शॉट, गेंद सीमारेखा से बाहर। 6 रन के लिए। रन इसी के साथ पूरे होते हुए 1 विकेट पर, और फिर से वही बिल्कुल रिप्ले मैदान पर दिखाई देता हुआ, वही नसीहत, वही जो कि
शॉट मिड विकेट पर और एक लंबा हवाई फायर 6 रन के लिए। ओवर और ये भी बाहर गया। शायद जो कि उनके खेमे में डगआउट में चर्चा हो रही थी, ये भी जाएगा बाहर। बिल्कुल वही हुआ, ये भी गेंद बाहर मिड विकेट बाउंड्री पर। ज्योतिषी लगता है। बिल्कुल हाँ, ज्योतिषी लगते हैं। लेकिन 6 रन स्कोर के खाते में हमारे रोहित जानकारी दे रहे हैं। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 62 रन हो चुके स्कोर बोर्ड पर। 62 आने वाले मनोज 2 ओवर 12 बॉल्स और 2 ओवर में 12 गेंदों में चाहिए मैच को जीतने के लिए। 42 रन 42, 12 बॉल्स 42, 21 रन प्रति ओवर, यानी 3 बड़े शॉट चौके के साथ, यानी 4 शॉट। मैच बिल्कुल पिछले मैच की तरह लग रहा है। रोहित जब बल्लेबाजी कर रहे हैं, सामने साई भी बिल्कुल 21 रन चाहिए। बिल्कुल 21 का रन रेट का औसत है, 42 का जो कि टोटल 12 गेंदों का सवाल है मैदान पर। और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उसी के साथ नदीम एक फूल तो जरूर देना पड़ेगा, जो कि बख्शिश वितरण के समारंभ के साथ पिच क्यूरेटर को एक फूल देना पड़ेगा। क्या विकेट बनाया है, बहुत एक अच्छा विकेट है, फ्लैट विकेट है। गेंदबाजी भी बढ़िया देखने को मिली फिर के आज के दिन में। पावर प्ले में 1 ओवर में 1 रन दिया, और इसी के साथ बल्लेबाजी भी कमाल की देखी मैदान पर। मुन्ना की बल्लेबाजी हो, अमृत वेरलेकर हो, और छोटी गेंद मिली, पुल किया इस बार तगड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। 11 गेंदों का खेल बाकी, 36 रन मैच को जीतने के लिए। क्या मुकाबला हो रहा है मैदान पर। 42 का टोटल था, 12 गेंदों में एक शॉट के साथ फिर से थोड़ा सा जो कि समीकरण को बदल दिया। आने वाले 11 गेंदों का खेल बाकी। ओ फिर की गेंद, फ्लाइटेड गेंद, थोड़ा सा गति में परिवर्तन, थोड़ा जल्दी खेल बैठे। सही स्ट्राइक एंड पर मौका जरूर था ये भी इस गेंद पर शॉट लगाने का। अच्छी गेंद, डॉट गेंद के साथ थोड़ा सा कमबैक भी कर रही है गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम। आने वाले 10 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। अच्छा शॉट मिड विकेट पर, फील्डर मौजूद, सीधा पकड़ा गया कैच मिड विकेट बाउंड्री पर। एक शानदार इनिंग समाप्त होते हुए सही आउट होकर वापस दूसरा धक्का लगता हुआ स्ट्राइक मिलता हुआ रोहित को। और रोहित का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज देखना होगा कौन निकलेंगे बल्लेबाजी में। फिलहाल 9 गेंदों का जो अभी भी खेल बाकी। स्कोर हो चुका है 68, 68 रन टोटल। गेंदों का खेल बाकी, 36 रन, 6 शॉट चाहिए 9 गेंदों में। नए बल्लेबाज मैदान पर। अच्छा शॉट, इस बार सिंगल देखना होगा डबल के लिए निकलते हैं या नहीं। मिड विकेट बाउंड्री पर सुंदर फील्डिंग, अच्छा थ्रो, सीधा विकेट कीपर के हाथों में। पहले बाउंस के बाद एक सिंगल बनता हुआ। चाहिए 35 रन अभी भी, 8 गेंदों का खेल बाकी, 8 बॉल्स 35 रन्स। नए बल्लेबाज मैदान पर स्ट्राइक एंड पर। ओ अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, फिर की गेंदबाजी, नतीकुली गेंदबाजी, फ्लाइटेड गेंदबाजी। खड़े खड़े मारना चाहते थे लेकिन गेंद लेग स्टंप से ऑफ स्टंप पर निकली, कट होकर लेग कटर, लेग ब्रेक गेंद। और बल्लेबाज उस गेंद पर बिल्कुल कोई खास नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए गेंद के बारे में। डॉट गेंद विकेट कीपर के हाथों में। थोड़ा फिर से आगे निकले, फ्लाइटेड गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन, फिर से लेग कटर, लेग ब्रेक। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ। 7 रन दिए, कहीं ना कहीं इस ओवर के साथ कमबैक भी किया गणपति वॉरियर्स क्रिकेट। एक विकेट भी चटका इस ओवर में गेंदबाजन अन्नू ने। और आखिरी ओवर अब मात्र बचा हुआ।
6 गेंदों का खेल और मैच को जीतने के लिए हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा। 35 रन चाहिए आखिरी 6 गेंदों में। स्ट्राइक एंड पर रोहित, पिछले ओवर में कमबैक किया गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम ने, लेकिन फिलहाल मुकाबला समाप्त नहीं हुआ है। सामने गेंद को खेला, इस बार फील्डर मौजूद, बहुत ही शानदार फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर शिवाजी गेंद को फील्ड करते हुए, और रोहित ने शायद सोचा, सामने देखा उन्होंने, इस शॉट के साथ थोड़े से निराश भी हो गए। मालूम है अब थोड़ा सा मुकाबला दूर हो चुका है। क्या बल्लेबाजी हो रही है। फिर से सामने गेंद को ड्राइव किया, अब इस बार निकले, सिंगल बनाया। थ्रो जब तक दूसरा रन बन सकता था नहीं, लेकिन बिल्कुल नजर नहीं थी गेंद के ऊपर। 1 रन 4 गेंदों का खेल बाकी अभी भी मैच को जीतने के लिए, और चाहिए 34 रन। अब मैच लगभग फंस चुका है मैदान पर। अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद, ऑफ स्टंप पर बल्ले से लगी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर फाइन लेग से निकले, गेंद को फील्ड करते सिंगल। आने वाला मैच बरमुडा पॉइंट और उन्हीं के साथ हो रहा है। श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम टॉस जीता, फील्डिंग कर रही है, मौका दिया बल्लेबाजी को। दोनों टीमों का बीच में अगला मैच। फिर से कारपेट के साथ सिंगल के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाए। मालूम है मुकाबला लगभग हाथों से छूट चुका है, लेकिन बढ़िया खेल खेला मोरजाई वॉरियर्स क्रिकेट टीम ने। आज गेंदबाजी में थोड़ी सी महंगी हुई गेंदबाजी, क्योंकि टारगेट थोड़ा सा जब 90 से आगे निकलता है तो प्रेशर बल्लेबाजी पर आ जाता है, और वही हुआ। लेकिन शुरुआत बढ़िया की थी रोहित ने बल्लेबाजी में, शुरू से आक्रमण किया था। लगभग 3 ओवर में मुकाबला 50-50 का था, लेकिन उसके बाद चौथे ओवर में मैच को अन्नू ने बिल्कुल मोड़ दिया। 7 रन दिए चौथे ओवर में, और वहीं पर एक विकेट भी चटकाया, कहीं ना कहीं रोक लगा दी उस ओवर के साथ अन्नू ने। बड़ा शॉट, लेकिन देर हो गई मैदान पर। रोहित के बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री पर मैच समाप्त होते हुए, और मैच को जीतती हुई गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम, आपका फिर से अभिनंदन। और मोरजाई वॉरियर्स, आपका भी अभिनंदन। बहुत अच्छा खेला आपने क्रिकेट इस मैच में। आज पिछले मैच में जो कि थोड़ी सी गेंदबाजी में कमी महसूस जरूर हुई, रन काफ़ी बने, लेकिन उसका पीछा करते हुए रोहित की शानदार बल्लेबाजी, साइद ने कमाल की। और फिलहाल अगला मुकाबला, मैन ऑफ द मैच इस मैच का